morning, guys. Welcome to the first lesson of 12th Commerce Economics, Introduction to Micro and Macroeconomics. In previous lecture, we've learned about we can say, meaning and definition about micro and macroeconomics. Now, let's move toward the features of macroeconomics. Okay, features of macroeconomics. Now, before starting the features of macroeconomics, let me explain you once again the meaning or definition of macroeconomics. Macroeconomics means to study about national income or national expenses. Okay, macroeconomics is nothing but study about national income or national expenses. Yeah, it's also known as total or we can say aggregate income, aggregate firm. Yeah, total study of about firm, organization, a school, XYZ. So this is the meaning and definition of macroeconomics. Now let's have a look toward the features of macroeconomics one by one. The first point is study of aggregates. Macroeconomics means in large quantity. In large quantity means whatever we can say samples, documents or data is collected, it's on large quantity. जो भी डेटा वेटा हमने जो भी चीज़ कलेक्ट करनी है वो चीज़ क्या रहेगी बच्चों, लार्ज क्वांटिटी में रहेगी. बस इसी को बोला जाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स इट्स अ स्टडी अबाउट एग्रीगेट. एग्रीगेट मीन्स व्हाट, national income, yeah, we can say total income of our nation, total output, or we can say national output, total output of our nation. All these things are involved or include in macroeconomics. Now, national income or national expenses. National income or national expenses. The record of these two is included or involved in macroeconomics. Move on to the next one, which is income theory. Okay, income theory. Now, income theories means what? As I told you, macroeconomics means national income minus national expense. For example, national income is 1000 rupees and national expenses are 300 rupees. So the balanced amount, which is rupees 700, is income of a nation. So it's also known as or called as income theory. What macroeconomics is also known as or called as income theory. मैक्रोइकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम थियरी भी बोलते हैं. कैसे बच्चों, कि मैक्रोइकोनॉमिक्स जो भी हमारा, इसके अंदर हम लोग पूरे नेशन की इनकम की, के नेशन में जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उन सभी की इनकम उन सभी की इनकम के ऊपर जो भी टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो कलेक्ट कर रही है ना, वो, और जितना भी नेशन का एक्सपेंस है. अब नेशन एक्सपेंस कहाँ पे करेगी, जो भी रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग मटीरियल है या अदर जो भी एक्सपेंसेस है, उन चीज़ों के लिए जो भी पैसा हमारी गवर्नमेंट खर्च करती है, उसमें से जो बैलेंस्ड अमाउंट बच जाती है. नेशनल इनकम मीन्स टैक्सेस कलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक, एंड नेशनल इनकम मीन्स टैक्सेस कलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक, एंड national expenses means expenses incurred, yeah, expenses occurred for general public, such as for constructing road, for building we can say government schools, for opening government schools, government hospitals, and to provide rationing facilities or we can say meal facilities to poor peoples or needy peoples. All these things are expenses of a government. Now, for example, your income is 1000, आपकी नेशनल इनकम क्या हो जाती है बच्चों, जो भी हमारी जनरल पब्लिक
खुद की इनकम पे जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर रही होती है वो बन जाती है हमारी नेशनल इनकम। और नेशनल एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, एक कंट्री एक नेशन खर्च कब कब करेगी, जब वो एक गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेगी, उसको फ्री में जब बुक्स प्रोवाइड करेगी, उसको फ्री में मील फैसिलिटी मतलब खाना पीना प्रोवाइड करेगी, उसको फ्री में रेशन प्रोवाइड करेगी, या जो हमारी गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्ट करती है, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट ओपन करती है बच्चों, ये सब कहलाता है हमारा नेशनल एक्सपेंसेस। एंड the difference between your national income and national income, difference between your national income and expenses is called as income of your country। 1000 रुपये की मेरी नेशनल इनकम है, 300 रुपये के मेरे खर्च हो गए नेशन के लिए, बचे हुए जो 700 रुपये वो है मेरा इनकम, और इसी से मैं मेरी कंपनी की डेवलपमेंट करूंगी, है ना, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और एक्सपांशन ऑफ माय नेशन, ये सारी चीज़ें मैं उसमें इन्वॉल्व करूंगी। अब इनकम थियरी क्यों बोला जाता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स को? एज आई टोल्ड यू, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डिटेल्ड स्टडी अबाउट, वी कैन से अबाउट द होल नेशन। इसके अंदर इट इंक्लूड्स द नेशनल इनकम एंड नेशनल एक्सपेंसेस ऑफ the whole country, but of course it helps in deciding income level of, we can say, of the persons who are citizens of India। हम easily we can decide और we can determine कि इनकम थियरी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कितने लोग अर्न कर रहे हैं, कितने लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं और खर्च कितना हो रहा है, उन चीज़ों से इजीली वी कैन डिटरमाइन और डिसाइड the incomes of a person। This is known as income theory। Move on to the next one, that is general equilibrium। Okay, general equilibrium means what? General equilibrium is a point of interaction, yeah, intersection, where a person is aware about the demand of product in market, and simultaneously the person have to know or aware about supply of product in market। एक जो बंदा है जो पर्टिकुलर चीज़ बना रहा है, रन कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, उस बंदे को उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड भी पता होनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट है वो भी पता होना चाहिए, मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और उस प्रोडक्ट का सप्लाई कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ पीस ऑफ डस्टर। मेरा प्रोडक्ट क्या है बच्चों? डस्टर। For example, I am manufacturing duster in my factory or my company. So it's a job or duty or responsibility of me or my firm to know the demand of duster in market। सबसे पहले मुझे जानकारी खोजनी होगी या तलाशनी होगी कि मार्केट में डस्टर की वी कैन से डस्टर की डिमांड कौन कौन लोग करता है। तो डस्टर की डिमांड तो रहेगी हमारी कॉलेज, ट्यूशंस, ऑफिसेज और कोचिंग क्लासेस। चलो कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन, ये सब तो एक ही हो गया है ना, इन सब जगहों पे मेरा डस्टर यूटिलाइज होगा या यूज में आएगा। अब मेरी डिमांड इन 3 चीज़ों में है, अब उसका सप्लाई, देन आई हैव टू सी कि इन कॉलेज, ट्यूशन, स्कूल, ऑफिसेस, यहाँ पे डस्टर सप्लाई कौन कर रहा है, या मार्केट में कितना डस्टर फिलहाल में है, स्टॉक में है या सप्लाई में है या इन ट्रांजिट है। I have to have a detailed knowledge about it। This is known as general equilibrium। Move on to the next one। Interdependence। Okay, now interdependence means what? Key level of your income, then investment, and then output। Okay, as I told you, macroeconomics means a detailed study about, yeah, we can say a total study about your whole nation, a whole country, national income, national expenses, all this। Interdependence means what? इसके अंदर हम easily we can judge or decide or determine income of a person या income of a nation, then investments made by a person, investments made by the country, है ना, which will result in growth and expansion। Okay, which will result in growth and expansion of the particular organization। And output,
What is the output about income and investment? It will results in, as I told you, expansion. आइए इंटरडिपेंडेंस में क्या हो जाता है बच्चों? इंटरडिपेंडेंस हो जाता है कि हमारी कंपनी की इनकम कितनी है, हमारी कंपनी में कितने लोग वी कैन से पैसा अर्न करते हैं, इनकम टैक्सेस कितने पे करते हैं, प्लस कितना इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के पास या जनरल पब्लिक के पास में। उस इनकम और उस इन्वेस्टमेंट की बिना पर ही हम लोग क्या जज करेंगे या क्या शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, हमारी कंपनी की ग्रोथ या हमारी कंट्री की ग्रोथ और एक्सपांशन किन चीज़ों पर डिपेंड रहेगी बच्चों? हमारी कंपनी की इनकम, सॉरी, हमारी कंट्री की ग्रोथ और एक्सपांशन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी? हमारी कंट्री की इनकम और इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये था मेरा वी कैन से फिफ्थ वाला पॉइंट। आइए सिक्स्थ वाला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। Next one is lumping method. Lumping method means what? And to have a detailed study about whole economy, just like that national income and national expense. Okay, to have a detailed study or whole study of economy of your country, है ना, the national income and the national expenses is इट्स इन्वॉल्व इन लंपिंग मेथड। ये सारा लंपिंग मेथड क्या रहेगा? वही हमारा नेशन का पूरा इनकम, नेशन का पूरा एक्सपेंसेस, पूरी इकोनॉमी के बारे में ओवरऑल जानकारी जिस चीज़ से मुझे मिल जाती है, दिस इज लंपिंग मेथड। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ मॉडल्स। नेक्स्ट विच इज सेवेंथ वन, growth models. Okay, as I told you that macroeconomics means to study about the whole economy या overall economy, है ना। as we knows the national income, जब हमें पता है कि नेशनल इनकम कितनी है, नेशनल के एक्सपेंसेस कितने हैं, नेशन के एक्सपेंसेस कितने हैं, एंड वी नो द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेशनल एक्सपेंसेस, इजीली विल नो द डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेशनल एक्सपेंसेस, तो easily will decide growth plans, expansion plan of expansion for the firm, for the country, for the organization and for the nation। जब हमें पता रहेगा कि मेरी नेशनल इनकम इतनी है, मेरे एक्सपेंसेस इतने, मुझे ये टैक्सेस वो टैक्सेस सब जाके इतनी इतनी मेरे हाथ में बैलेंस्ड अमाउंट बचती है, तो इजीली मैं मेरे ग्रोथ के लिए प्लान्स या ग्रोथ के लिए मॉडल्स बनाना शुरू करूँगी, है ना। हाउ टू एक्सपांड माई कंट्री, माई नेशन, माई कंट्री, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्लान्स मैं बना पाऊँगी। Move on to the next one. Okay, this is seventh one, general price level. General price level. Now, the level of prices are changed. है ना, change according to we can say inflation. Inflation मतलब हमारी महंगाई। Okay. Now, change in product prices. जनरल प्राइस लेवल क्या होती है बच्चों? कि हमारी जो पर्टिकुलर प्राइस है, जैसे कि आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ डस्टर, हमारा जो डस्टर है उसकी जो प्राइसेस है वो क्या है, फ्लक्चुएट होती रहेगी, है ना। कभी प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, कभी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, मेरे प्रोडक्ट की प्राइसेस कम ज़्यादा होती रहेगी, जिसकी वजह से जब मेरी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तब बढ़ जाती है महंगाई, इन्फ्लेशन, और जब मेरी प्राइसेस डिक्रीज हो जाती है, जब मेरी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइसेस डिक्रीज हो जाती है, तब क्या हो जाता है कि मैं उनको नॉर्मल दामों में बेचती हूँ, तब महंगाई कुछ नहीं बढ़ेगी। तो दिस इज जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मीन्स व्हाट? टू चेंज द प्राइसेस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना, विच इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी एंड ऑल। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, which is policy oriented. Policy oriented means what? For promotion and growth. Now policy oriented मतलब क्या? हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था, it helps in determining or deciding policies for the betterment of our country.
हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था ये हमें किस चीज़ में मदद करेगा? ये हमें मदद करेगा कि हमारी वी कैन से कंट्री के लिए पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए, हमारी पॉलिसी की हमारी कंट्री की भलाई के लिए कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए, कौन से अच्छे अच्छे काम हमने करने चाहिए जिससे कि हमारी कंपनी हमारी कंट्री प्रमोट हो जाए और हमारी कंट्री की ग्रोथ हो जाए। ये सारी पॉलिसीज़, ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारा सब कुछ जो भी झमेला है, ये सब कुछ हमें बताता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें एक ऐसी पॉलिसी दिखाता है या हमें ये मीन्स वेज दिखाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स शोज द वे हाउ टू प्रमोट आवर कंट्री एंड हाउ टू वी कैन से ग्रो आवर कंट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि कैसे हम हमारी कंट्री को प्रमोट करें, है ना, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और कैसे हम हमारी कंपनी को ग्रो करें, एक्सपांड करें। ये सारी चीज़ें, ये सारी पॉलिसीज, ये सारी प्रोसीजर्स, ये सारा सब कुछ आ जाता है मेरा पॉलिसी ओरिएंटेड के अंदर या पॉलिसी ओरिएंटेड। अब ये सारी चीज़ें ओवरऑल मुझे सब कुछ बताई जाती है मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट study about the whole economy, study about national income, national expenses, and how a country is growing, its expansion process। ये सारा सब कुछ हमें बताता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।